चलिए आइए दोस्तों लिखते हैं -35 by 14, right? And we write -21 by 14, right? अभी इनके बीच now we have to find out our 6 rational numbers. So आप immediately notice करोगे दोस्तों, as always your denominator is the same 14 and 14 and numerator जो है वो -35 से बढ़ के जा रही है till -21. So अगर हम ऐसे कुछ नंबर्स लिखते हैं with the same denominator and अगर हम न्यूमरेटर को इंक्रीज करते हैं from -35 to -21, then those will be the rational numbers that we are looking for. So -35 by 14 की अगली वाली number we can write that as -34 by 14. Then -33 by 14. Then -32 by 14. Then -31 by 14. Then -30 by 14. Then -29 by 14. आप नोटिस करोगे दोस्तों we could have gone on and on because -29 then -28 by 14 -27 by 14 so on so forth, but हमें चाहिए 6 numbers. So I think we found our 6 numbers. एक rational number, दो rational number, third rational number, fourth number, fifth number and sixth number. So between -35 by 14 and -21 by 14 हमने ढूंढ ली है हमारी 6 रैशनल नंबर्स. वन, 2, 3, 4, 5, 6 हमें 6 रैशनल नंबर्स ढूंढनी थी between -5 by 2 and -3 by 2. and आप नोटिस करोगे दोस्तों again अगर आप 7 से if you divide both numerator denominator you will see this is nothing but -5 by 2, right? and similarly 7 से अगर आप इसे divide करोगे numerator denominator को this is nothing but -3 by 2, right? So between -5 by 2 and -3 by 2 हमने ढूंढ ली है 6 रैशनल नंबर्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6 रैशनल नंबर्स यूजिंग आवर 2-स्टेप टेक्निक. सो दोस्तों हमने अब तक 3 एग्जाम्पल्स देखी है विद वेयर 2 नंबर्स हमें दी गई थी विद सेम डिनोमिनेटर. Now we have seen like both positive numbers, then एक positive number, एक negative number, and then both negative numbers. So, but with same denominators, कैसे करके we can find out rational numbers using 2-step technique. अभी हम बात करेंगे दोस्तों. Now, what if the denominators are different? So, मान लीजिए अगर हमें कहा जाए कि you have 1/3 and you have 1/2. इनके बीच अगर आप 5 रैशनल नंबर्स ढूंढिए. So how are we going to approach those questions? So this again the 2-step technique, the very basic of 2-step technique, that remains the same. That is step 1 में we write down how many rational numbers we need to find. उसे अगर x बताते हैं then we add 1 to that number, we get a new number y. So in this case y will be 5 rational number अगर हमें ढूंढनी है then 5 plus 1, so y is actually 6. And then similarly step 2 it tells us the same thing कि आप both numerator denominator of each of the given numbers को आप जो number मिली है आपको step 1 से which is 6, you multiply both the numerator denominator of each of these two numbers by 6 and जो दो नई fraction मिलेगी उसके बीच आप ढूंढिए आपकी 5 rational numbers. But यहाँ पे दोस्तों there is one little modification that we have to do. वो है ये दोस्तों कि before you apply the 2-step technique, if two fractions with different denominators are given, अगर if you have two fractions with different denominator, we first make both the fractions have same denominator by taking their LCM and converting the numerator appropriately.
सो इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपके पास डिफरेंट डिनोमिनेटर अगर ऐसे करके दी जाती है, सो आपकी पहली गोल ये है, बिफोर यू अप्लाई द टू स्टेप टेक्निक, पहली गोल ये है आपको डिनोमिनेटर को सेम बनानी है. सो एंड द वे यू डू दैट इज आप यू टेक LCM of 3 and 2 in this case, so which will be 6, and then you make both the fraction, you convert them in such a way that denominator becomes 6 for both this and this. उसके बाद आप आपकी टू स्टेप टेक्निक अप्लाई कीजिए, जैसे करके हमने लास्ट 3 एग्जांपल्स देखी है. सो चलिए दोस्तों, नाउ लेट अस फाइंड आउट विद सम एग्जांपल्स कि कैसे करके वी कैन एक्चुअली डू दिस. सो चलिए दोस्तों, व्हाई डोंट वी एक्चुअली टेक द लास्ट एग्जांपल. सो अगर हमें 5 रैशनल नंबर्स ढूंढनी है बिटवीन से 1/3 एंड 1/2, सो हम कैसे करके इसे हैंडल करेंगे. सो हम नोटिस करेंगे इमीडिएटली दोस्तों कि जो डिनोमिनेटर है ये है 3 एंड देन द अदर वन हैज डिनोमिनेटर 2. सो बिफोर वी अप्लाई टू स्टेप टेक्निक, फर्स्ट थिंग दैट वी डू, वी टेक LCM. हमें दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनानी है ना. अगर आप LCM लेते हो ऑफ 3 एंड 2, दोनों प्राइम नंबर्स है, सो LCM विल बी 3 मल्टीप्लाई बाई 2 विच विल बी 6. सो अभी आप ईच ऑफ द नंबर्स को आप लिख लीजिए 1/3 एंड 1/2. नाउ आपको इसे व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको इसे यू हैव टू मल्टीप्लाई इन सच ए फैशन दैट योर डिनोमिनेटर बिकम्स 6. सिमिलरली इसे आपको यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय समथिंग ताकि आपके डिनोमिनेटर बिकम 6, बिकॉज 6 इज द LCM. सो 3 को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं देन दैट बिकम 6. सो हम कोई फ्रैक्शन को सिर्फ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, देन द फ्रैक्शन विल चेंज. सो फ्रैक्शन को सेम रखने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर ताकि फ्रैक्शन रिमेन्स द सेम. सो अगर 2 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है 6 के लिए, वी मल्टीप्लाई ऑल्सो द न्यूमरेटर बाय 2. सो 1 2s are 2, 3 2s are 6. सो सिमिलरली यहाँ पे इन दिस केस अगर हमें 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 6 मिलती है, then we have to multiply both numerator and denominator by 3. So 1 3 is a 3 and 2 3 is a 6. So अभी जो हमें ये नंबर मिली है 2/6 and 3/6, इसे दोस्तों we actually use now apply the two-step technique on 2/6 and 3/6. So two-step technique जैसे हमने देखी थी पहले एग्जाम्पल 1 में. So the first step is that कितनी नंबर्स हमें ढूंढनी है, रैशनल नंबर्स 5. So we write 5, then we add 1 to it, so this gives us 6, right? Now जो step 2 है, what does step 2 tell us, कि आप आपकी जो दोनों नंबर्स को लिखिए. your numbers are now 2/6, right? it is important to note दोस्तों, आपके नंबर अभी 1/3 नहीं रही है, it has become 2/6. so आप 2/6 को लिखिए. सिमिलरली आपकी जो दूसरी नंबर है that is 3/6. नाउ इसकी बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, द नंबर यू हैव फाउंड फ्रॉम स्टेप 1. सो 2 6 are 12, 6 6 are 36. Now similarly 3/6 को you have to multiply both numerator denominator by 6. 3 6 are 18, 6 6 are 36. Now जैसे कि हम करते हैं हमारी टू स्टेप टेक्निक में, ना बिटवीन दीज टू न्यू फ्रैक्शंस अभी हमें ढूंढनी है हमारी 5 रैशनल नंबर.